So, good morning, students. Your next topic is population explosion and birth control. Population the blast होना ते how can we control this? In the last century, an all-round development in various fields significantly improved the quality of life of the people. ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲ ਰਾਊਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਫ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਆ ਉਹ ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਊਐਵਰ ਇਨਕਰੀਜ਼ਡ ਹੈਲਥ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼, ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਲਥ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਅਮੰਗ ਵਿਦ ਬੈਟਰ ਲਿਵਿੰਗ ਕੰਡੀਸ਼ਨ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਲਿਵਿੰਗ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਵੀ ਬੈਟਰ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਦੈਟ ਕਾਜ਼ ਐਨ ਐਕਸਪਲੋਸਿਵ ਇੰਪੈਕਟ ਔਨ ਦਾ ਗਰੋਥ ऑफ पॉपुलेशन। इन पॉपुलेशन की ग्रोथ पर बहुत बड़ा फर्क पिया। द वर्ल्ड पॉपुलेशन विच वाज अराउंड 2 बिलियन इन 1900 rocked to about 6 billion by 2000। 1900 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵਰਲਡ ਦੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ 2 ਬਿਲੀਅਨ ਸੀ, 2000 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਗਈ? 6 ਬਿਲੀਅਨ। ਅ ਸਿਮਿਲਰ ਟ੍ਰੈਂਡ ਵਾਜ਼ ਅਬਜ਼ਰਵਡ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਵਰਲਡ ਦੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਡੀਆ ਜੀ ਹੋ ਗਈ। ਸਾਡੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ 350 ਮਿਲੀਅਨਸ ਐਟ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਫ ਆਵਰ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਰੀਚਡ ਕਲੋਜ਼ ਟੂ ਬਿਲੀਅਨ। ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਵੇਲੇ 350 ਮਿਲੀਅਨ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ? 1 ਬਿਲੀਅਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਬਾਏ 2000 and crossed 1 billion in May 2000। this mean every 6th person in the world ਕੀ ਆ? ਇੰਡੀਅਨ ਆ। ਜੇ ਵਰਲਡ ਦੀ ਸਾਰੀ ਗਿਣਨ ਲੱਗੇ ਉਹ 'ਚ 6 ਇਨਸਾਨ ਬਾਅਦ ਹਰੇਕ ਵਾਰੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆ ਜਾਣੀ ਆ। 6ਵਾਂ ਇਨਸਾਨ ਇੰਡੀਅਨ ਆ। ਅ ਰੈਪਿਡ ਡਿਕਲਾਈਨ ਇਨ ਡੈਥ ਰੇਟ ਘਟ ਗਿਆ। ਮੈਟਰਨਲ mortality rate and infant mortality rate as well as increase the number of people। mortality rate death rate घट गए, चाहे मैटरनल आ मदर का चाहे इन्फेंट का, ਉਹਦੇ ਨਾਲ पॉपुलेशन की होगी साड़ी इनक्रीज हो गई। आवर RCH प्रोग्राम्स, ठीक है, RCH प्रोग्राम किहड़े ने? रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम। दो वी कुड ब्रिंग डाउन द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। इन्होंने कुछ कोशिश की है इस पॉपुलेशन ग्रोथ रेट नू डाउन करन दी। इट वाज ओनली मार्जिनल, थोड़ी जही। अकॉर्डिंग टू 2001 सेंसस रिपोर्ट, पॉपुलेशन ग्रोथ वाज स्टिल अराउंड 1.7%। मीनस 1000 ਦੇ ਪਿੱਛੇ 17% पर ईयर। ए रेट एट विच आवर पॉपुलेशन कुड डबल इन 33 ईयर्स। 33 सालों च आने वाले ने होर डबल हो जाना है। सच एन अलार्मिंग ग्रोथ रेट कुड लीड टू एन एब्सल्यूट स्केयरसिटी ऑफ इवन द बेसिक। जे इस तरह साडी पॉपुलेशन ग्रोथ बढ़ती गई तो उहदे नाल की होना है पुत्र जी? साडियां कुछ जिहड़ियां बेसिक रिक्वायरमेंट्स ने वो भी नहीं पूरियां होणियां। किहड़ियां ने बेसिक रिक्वायरमेंट्स? फूड नहीं मिलना प्रॉपर लोगों को, तो हुण भी नहीं मिल रहा। शैल्टर रहण नूं घर नहीं मिल रहा। क्लॉथिंग कपड़े नहीं मिल रहे। In spite of significant programs made in those areas, the government was forced to take up serious measures। गवर्नमेंट इहदे बारे हुण सीरीयसली सोच रही आ टू चैक दिस पॉपुलेशन, इस पॉपुलेशन नूं घटाउण दे। मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टैप की आ पुत्तर जी इस पॉपुलेशन नूं घटाउण दा? टू मोटिवेट स्मॉलर फैमिलीज़ नूं मोटिवेट करना यूजिंग वेरीअस कंट्रासैप्टिव मैथड्स द्वारा। यू हैव सीन एडवरटाइजमेंट इन मीडिया दे विच एज वेल एज पोस्टर्स दे विच शोइंग ए हैप्पी कपल विद 2 चिल्ड्रन। वो हमेशा तुहानूं पोस्टर च की दिखाउंदे ने? जिन्हां दे 2 बच्चे ने, वो कपल हमेशा खुश ने ते हमेशा स्लोगन लिखिया हुंदा हम दो हमारे दो। बट मैनी कपल्स मोस्टली ऑफ द यंग अर्बन वर्किंग वंस हैव बीन अडॉप्टेड एंड 1 चाइल्ड नॉर्म। तो हुण तां एक बच्चे वाली भी मतलब कि आ गया। लोगों ने यह भी सोच लिया कि 1 चाइल्ड इनफ। स्टैट्यूटरी रेजिंग ऑफ मैरिजेबल एज ऑफ द फीमेल टू 18 ईयर्स। फीमेल की एज 18 साल करती तो मेल की 21 ईयर्स के इस तो पहला तुसी मैरिज नहीं कर सकते। ये भी कुछ कंट्रोल होया आ।
ਹੁਣ ਕੁਝ ਕਾਮਨਲੀ ਯੂਜ਼ਡ ਕੰਟਰਾਸੈਪਟਿਵ ਮੈਥਡਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਨਵਾਂਟਡ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਟੌਪਿਕ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਸਟ ਆਹ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ, ਮੋਰਟੈਲਿਟੀ ਰੇਟ ਆ ਗਿਆ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ। ਹੁਣ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਨੈਕਸਟ, ਕੰਟਰਾਸੈਪਟਿਵ ਸ਼ੁੱਡ ਵੀ ਯੂਜ਼ਰ ਫਰੈਂਡਲੀ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੰਟਰਾਸੈਪਟਿਵ ਮੈਥਡ ਹੋਣ ਉਹ ਯੂਜ਼ਰ ਫਰੈਂਡਲੀ ਨੇ, ਯੂਜ਼ਰ ਫਰੈਂਡਲੀ ਹੋਣ, ਜਿਹੜਾ ਯੂਜ਼ ਕਰੇ ਉਹਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਘੱਟ ਕਰਦੇ ਹੋਣ, ਈਜ਼ਲੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋਣ, ਇਫੈਕਟਿਵ ਹੋਣ, ਰਿਵਰਸੀਬਲ ਹੋਣ, ਵਿਦ ਨੋ ਔਰ ਲੀਸਟ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਉਹਦੇ ਹੋਣ ਨਾ, ਜੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋਣ। ਇਟ ਸ਼ੁੱਡ ਇਨ one way interfere with the sexual drive, desire and sexual act। wide range of contraceptive method ਜਿਹੜੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, that are natural। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੈਟੇਗਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨੈਚੁਰਲ ਤੇ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ, ਬੈਰੀਅਰ, IUDs, oral contraceptive, injectable, implant and surgical methods। so we will do all these contraceptive methods one by one। these can ask in 2 marks or 1 marks question। natural methods work on the principle of avoiding chance of ovum and sperm meeting। ਨੈਚੁਰਲ ਜਿਹੜੇ ਕੁਦਰਤੀ ਤਰੀਕੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਓਵਮ ਤੇ ਸਪਰਮ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ 1 ਆ ਗਿਆ ਪੀਰੀਓਡਿਕ ਐਬਸੈਂਟੈਂਸਿਸ। ਸਚ ਮੈਥਡ ਇਨ ਵਿਚ ਦਾ ਕਪਲਸ ਅਵਾਇਡ ਔਰ from coitus day 10 to 17th of menstruation cycle when ovulation could be expected। ਇਹ ਉਹ ਦਿਨ ਨੇ 10 ਤੋਂ 17 ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਐਗ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੁਆਇਟਸ ਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਅਵੋਇਡ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਪਲਸ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਐਗ ਨੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਅ ਚਾਂਸ ਆਫ ਫਰਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਰ ਵੈਰੀ ਹਾਈ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦਿਸ ਪੀਰੀਅਡ। ਇਸ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਫਰਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਚਾਂਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਫਰਟਾਈਲ ਪੀਰੀਅਡ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਦੇਅਰਫੋਰ ਬਾਏ ਅਬਸਟੇਨਿੰਗ ਫਰੋਮ ਕੁਆਇਟਸ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦਿਸ ਪੀਰੀਅਡ ਕੰਸੈਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ withdrawal or coitus interrupts is another method। ਇਹ ਵੀ ਦੂਸਰਾ ਤਰੀਕਾ ਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਨੈਚੁਰਲ ਨੇ। ਥਰਡ ਹੈਗਾ ਲੈਕਟੇਸ਼ਨ ਐਮੋਨੋਰੀਆ, ਐਬਸੈਂਸ ਆਫ ਮੈਂਸੂਰੇਸ਼ਨ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਮੈਥਡ ਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਦੈਟ ovulation and method is based on the fact that ovulation and therefore the cycle do not occur during the period of intense lactation following parturition। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਕਿ ਡਿਲੀਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪਾਰਚੂਰੇਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਲੈਕਟੇਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ ਆ, ਜਦੋਂ ਮਦਰ ਬੇਬੀ ਨੂੰ ਫੀਡ ਦੇ ਰਹੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਸਟਰੂਏਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਓਵੂਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਆ। ਚਾਂਸਸ ਆਫ ਕੰਸੈਪਸ਼ਨ ਆਰ ਆਲਮੋਸਟ ਨਿਲ ਇਨ ਦਿਸ ਟਾਈਮ। So this method has been reported to be effective only up to maximum periods of 6 months। ਇਹ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਹੀ possible ਆ, after that ਨਹੀਂ possible, ਠੀਕ ਆ। No medicines or devices are used। ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਮੈਡੀਸਨ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਬਟ ਇੱਕ ਇਫੈਕਟ ਆ ਚਾਂਸਸ ਆਫ ਫੇਲਰ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਮੈਥਡ ਸਕਸੈਸ ਹੋਣ, ਠੀਕ ਆ, ਇਹ ਫੇਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਹਾਈ ਰਿਸਕ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜੇ 3 ਮੈਥਡਸ ਕੀਤੇ ਨੇ ਨੈਚੁਰਲ, ਤੁਸੀਂ ਪੀਰੀਓਡਿਕ ਐਬਸਟੈਂਸਸ, ਠੀਕ ਆ, ਵਿਦਡਰਾਲ, ਲੈਕਟੇਸ਼ਨ, ਇਹ 3 ਮੈਥਡਸ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਆ ਜੇ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਪਲਸ ਕੁਆਇਟਸ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਬਟ ਦੀਜ਼ ਆਰ ਨੋਟ 100% ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ, ਬਟ ਕੀ ਨੇ, ਚਾਂਸਸ ਆਫ ਫੇਲਰ ਨੇ। ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਰੀਅਰ ਮੈਥਡ। ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਮਾਰਕਸ 1 ਮਾਰਕਸ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਓਵਮ ਐਂਡ ਸਪਰਮ ਆਰ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟਡ ਫਰੋਮ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਮੀਟਿੰਗ। ਓਵਮ ਤੇ ਸਪਰਮ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵਿਦ ਦਾ ਹੈਲਪ ਆਫ ਬੈਰੀਅਰਸ ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੱਚ ਮੈਥਡਸ ਆਰ ਅਵੇਲੇਬਲ ਫਾਰ ਬੋਥ ਮੇਲ ਐਂਡ ਫੀਮੇਲਸ ਦੇ ਲਈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈਗੀ ਆ ਕੰਡਮਸ, ਜਿਹੜੇ ਬੈਰੀਅਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਆ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁੱਤਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕੰਡਮਸ ਦੀ। ਐਂਡ ਦੇ ਆਰ ਆਲਸੋ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਦਾ ਯੂਜ਼ਰ ਫਰੋਮ STD, ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਟਰਾਂਸਮਿਟਡ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਤੋਂ ਵੀ ਕੰਡਮਸ ਬਚਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਕ ਏਡਸ ਤੋਂ ਵੀ।
बोथ द मेल एंड फीमेल आर डिस्पोजेबल, कंडम्स चाहे मेल और फीमेल द्वारा यूज़ किए जाते हैं, डिस्पोजेबल नहीं। ठीक है, उस तो बाद है ने डायाफ्राम, सर्विकल कैप्स एंड वॉल्स, ये भी बैरीयर्स ने जिन्होंने यूज़ किया जा सकता प्रैगनेंसी रोकण तो। दे प्रिवेंट द कंसैप्शन ऑफ ब्लॉकिंग द एंट्री ऑफ स्पर्म, की एंट्री नहीं होने देंगे। उस तो बिना कुछ क्रीम्स ने, कुछ जैलीज ने, कुछ फोम्स भी यूज़ कीतियां जा सकदियां ने। एनअदर डिवाइस जिहड़ी मोस्ट पॉपुलर आ वो हैगी आ IUDs, इंट्रा यूट्राइन डिवाइसिस। दीज डिवाइसिस आर inserted by the doctors to expert nurses ਜਾਂ डॉक्टर ਜਾਂ expert nurses in the uterus of the female ਦੇ uterus ਦੇ ਅੰਦਰ insert ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ intrauterine devices available as non medicated IUDs ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਿਪੀਸਲੌਪ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਾਪਰ ਰਿਲੀਜ਼ਿੰਗ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ IUDs, ਕਾਪਰ ਰਿਲੀਜ਼ਿੰਗ 2 ਨੇ, ਕਾਪਰ T ਤੇ ਕਾਪਰ 7 ਤੇ ਮਲਟੀ ਲੋਡ 375। ਹਾਰਮੋਨ ਰਿਲੀਜ਼ਿੰਗ IUDs ਵੀ ਨੇ, ਉਹ प्रोजेस्टेरोन LNG20 है। IUD, वाई यूज कॉपर रिलीजिंग IUDs, एक पेपर क्वेश्चन बहुत टाइम भारी आता आ, पिछले साल भी आया आ कि कॉपर रिलीजिंग IUDs क्यों यूज़ करते हैं, बिकॉज दीज इनक्रीज फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस मीन हुंदा खाना, स्पर्म दी फैगोसाइटोसिस करदियां ने विदिन द यूट्रस के अंदर, स्पर्म नूं खा जांदियां ने। या कॉपर आयन की करते हैं, दैट रिलीजड सुप्रैस स्पर्म मोटैलिटी, स्पर्म की मूवमेंट नूं दबा देंदे ने। सुप्रैस मीनस दबाउणा, मोटैलिटी मीनस मूवमेंट नूं। एंड द फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी स्पर्म की घटा देंदे ने। जिहड़े तुहाडे कोल कॉपर रिलीजिंग ने वो ये करते हैं। द हार्मोन रिलीजिंग IUDs मेक द यूट्रस अनसुटेबल फॉर इम्पलांटेशन एंड टू द स्पर्म। जिहड़ा ये तो सीगे कॉपर रिलीजिंग, जिहड़े हार्मोन रिलीजिंग ने वो इस तरह करते हैं, जिहड़ा यूट्रस है उन्होंने अनस्टेबल बना देंगे फॉर इम्पलांटेशन, कि उत्थे जे बाय चांस इम्पलांटेशन की है फर्टिलाइजेशन तो बाद है, फर्टिलाइजेशन तो बाद जिहड़ा स्टैप आ जिथे इम्पलांटेशन होनी आ वो होनी नहीं, यूट्रस नूं उहदे अनसुटेबल बना लेंदे आ उहदे लई। 3 तरह दी उन्होंने IUDs दसियां ने थोनू, नॉन मैडिकेटेड ने, कॉपर रिलीजिंग ने, हार्मोन रिलीजिंग ने। तिन्ना दे रीजन पूछ सकते हैं, 1 वर्ड च पूछ सकते हैं किहड़ियां कॉपर रिलीजिंग ने क्यों नहीं यूज़ कीतियां जा सकदियां, किहड़ियां हार्मोन रिलीजिंग ने क्यों नहीं यूज़ कीतियां क्यों नहीं यूज़ कीतियां जा सकदियां। नंबर 1 तो यही ने, फैगोसाइटोसिस ने, तो स्पर्म वाली जिहड़ी कॉपर वाली है स्पर्म की मोटैलिटी नूं रोकदी है। हार्मोन वाली इम्पलांटेशन, यूट्रस दे विच इम्पलांटेशन लई यूट्रस नूं अनस्टेबल बनाउंदी है। द आइडियल कंट्रासैप्टिव फॉर द फीमेल्स हू वांट टू डिले प्रैगनेंसीज, ये उन्हां लई ने जिहड़ियां प्रैगनेंसीज नूं रोकना चाहुंदियां ने फीमेल, जां बच्चे दे विच स्पेस करना चाहुंदियां ने। मोस्ट वाइडली एक्सैप्टेड यही मैथड यूज़ हुंदा आ। उस तो बिना साढ़े कोले ओरल भी ने, स्मॉल डोजेज ऑफ प्रोगेस्टेरोन दी मैडिस गोलियां भी ने जिन्हों आप कह दें प्रोग्राम एस्ट्रोन कंबीनेशन दियां भी साढ़े कोले ओरल पिल्स मिलदियां ने, दैट इज यूज्ड बाय द फीमेल्स। दे आर यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ टेबलेट्स की फॉर्म दे विच भी ने, एंड पॉपुलरली कॉल्ड द पिल्स भी कहने इन्हों। पिल्स हैव टू टेकन डेली, डेली लैनी पैंदी है फॉर 21 डेज दे लई, स्टार्टिंग प्रेबली विद द फर्स्ट 5 डेज ऑफ मैंचुरेशन साइकिल के 5 दिनों बाद, आफ्टर ए गैप ऑफ 7 डेज। विद इन द फर्स्ट 5 डेज ऑफ मैंचुरेशन उस तो 5 दिनों बाद स्टार्ट कर लेनी, तो ये 7 दिन का गैप पा देंगे आ जो पीरीयड्स आ गया। इट आफ्टर ए गैप ऑफ 7 डेज वही दसता जो मैंसुरेशन आ रही है वो 7 दिनों बाद स्टार्ट करते हैं। फिर आ लिखा हुआ उन्होंने, स्टार्टिंग प्रेफरली विद इन द फर्स्ट 5 डेज ऑफ मैंसुरेशन साइकिल, 5 दिनों बाद ही स्टार्ट करनी है। इट हैज़ बीन रिपीटेड इन सेम पैटर्न टिल द फीमेल डिज़ायर टू प्रिवेंट, ये उदों तक लै सकदियां ने जदों तक वो प्रैगनेंसी नहीं चाहते। दे इनहिबिट ओवुलेशन, एग नहीं रिलीज़ होने दिंदियां, इंपलांटेशन नूं भी रोकदियां ने, एज वैल एज अल्टर द क्वालिटी ऑफ सर्वाइकल म्यूकस टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ स्पर्म नूं भी रोकदियां ने।
पिल्स आर वेरी इफेक्टिव, बहुत घट साइड इफेक्ट्स ने, एंड वैल अडेप्टेड बाय फीमेल्स। ਇਹਦੀ एग्जाम्पल है सहेली। ठीक है, उस तो बिना कुछ नॉन स्टीराइड भी ने साडे कोले, कहते फॉर द फीमेल्स द सहेली द न्यू ओरल कंट्रासैप्टिव, नवी ओरल कंट्रासैप्टिव बनाई ली है फीमेल के लिए, दैट कंटेन्स ए नॉन स्टीरॉयड प्रैपरेशन, नॉन स्टीरॉयड प्रैपरेशन की बनी हुई है। इट इज़ वंस ए वीक पिल विद वेरी फ्यू साइड इफेक्ट्स एंड हाई कंट्रासैप्टिव। हफ्ते जिवें डेली लैनी पैंदी है 21 डेज़ के लिए, आ की कहते आ वो कि ये वीक दे विच इक्को ही लैनी पैंदी है, ये इन्ने अच्छे रिजल्ट्स ने। उस तो बाद आ गया प्रोजेस्टोन्स अलोन और इन कंबीनेशन विद एस्ट्रोजन, प्रोगेस्टोन ते एस्ट्रोजन दी इन्हां नूं कंबाइन करके भी कुछ इंजैक्शनस भी बनाए जाते हैं जोड़े स्किन के अंदर किए जाते हैं इंजैक्ट। द मोड ऑफ एक्शन इज सिमिलर टू उन्होंने भी पिल्स की तरह ही वो इफेक्टिव ने, एंड देयर इफेक्टिव पीरियड्स आर मच लॉन्गर, उन्होंने इफेक्टिव पीरियड बहुत ज़्यादा आ। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्रोगेस्टोन एंड प्रोगेस्टोन एस्ट्रोजन combination IUD use within 72 hours of coitus have been found to be very effective as emergency contraceptive, as they could be used to avoid the possible pregnancies due to rape or unwanted। पुत्र जी वो की कहते हैं कि एक तो इंजैक्शनस भी ने, इंजैक्ट किए जाते हैं। ठीक है, वो एक इंजैक्शन लग गया, उस तो बाद वो 1 साल बाद एक कोई इंजैक्शन 2 साल लिए कि 2 साल ही प्रैगनेंट नहीं हो सकते, कोई 3 कोई 5 साल लिए आ। बट वो कहता एक 72 आवर्स की भी इन्हों को मैडिसन बनी आ कि बाय चांस उन्होंने कोले कोई रेप वगैरह हो गया, उस तो बाद एक पिल मिलती आ वो खाण दे नाल, मतलब कि एमरजेंसी केस दे विच वो पिल दे देंदे आ। वो पिल 72 आवर्स तक काम करती आ, जिहदे नाल की हो जाती आ वो प्रैगनेंसी होण नहीं दिंदी। ठीक है, वो किहदी कंबीनेशन नाल बनी हुई है, प्रोगेस्टोन कल्ला भी है या प्रोगेस्टोन एस्ट्रोजन हारमोन की कंबीनेशन नाल बनी हुई है। ये वेरी इफेक्टिव कंट्रासैप्टिव आ। ये उन्हां केसिस ते जिथे हुंदे ने जिथे कि रेप वगैरह होवे जां एमरजेंसी कंडीशन दे विच इहनूं यूज़ करदी आ। 72 आवर्स दे विच विदिन लैनी पैंदी आ, इनू 72 आवर्स वाली कहते हैं। उस तो बाद लास्ट आ गया थोड़े को सर्जिकल मैथड, जिन्होंने स्टेरिलाइजेशन भी कहते हैं, आर जनरली एडवाइज्ड फॉर